مزید مشاورت نہیں، اسمبلیاں دسمبر میں ہی تحلیل ہوں گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اعلان، بولے 17 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کریں گے۔ پاکستان میں قانون کی حکمرانی نہیں، شرمناک طریقے سے بڑے ڈاکوں کے کیسز ختم کیے جا رہے ہیں، تباہی کے کنارے کھڑے ہیں، ہماری معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی 23 دسمبر کو تحلیل کیے جانے کا امکان۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ 23 مارچ سے پہلے انتخابات کی خواہاں ہے، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان عمران خان 17 دسمبر کو لبرٹی چوک اجتماع میں کریں گے۔ حکومت اور اتحادی جماعتوں میں ڈیڈ لاک برقرار۔ بی این پی میگل کے نائب صدر ملک ولی کاکڑ نے وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے معاملات طے پانے سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ کہا وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا بیان حقائق کے برعکس اور معاملے پر ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ وفاقی وزیر ایاز صادق نے ملاقات کا وقت مانگا ہے۔ اتحاد سے نکلنے کا فیصلہ کور کمیٹی کا اختیار ہے۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے دعویٰ کیا کہ بی این پی سے معاملات حل ہوں گے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان مذاکرات میں اہم پیش رفت۔ ذرائع کے مطابق صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر اقتصادی امور ایاز صادق اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی ملاقات۔ وفد نے صدر مملکت کو موجودہ سیاسی صورتحال پر حکومت کا موقف پیش کر دیا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کی واپسی تک ملک میں ڈیفالٹ کا خطرہ رہے گا۔ سابق وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے ایک بار پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کہا آئی ایم ایف نہ آیا تو دیگر مالیاتی ادارے بھی قرض نہیں دیں گے۔ شہباز شریف سیاسی ورثہ داؤ پر لگا کر ملک کو ڈیفالٹ سے بچا رہے ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نواز پر بھی تنقید، بولے میری بہن مریم نے چھوٹی موٹی چیزوں پر ٹویٹ کیے، یہ بات وہ فون پر بھی کہہ سکتی تھیں۔ پاکستان کو مختلف معاشی اعداد و شمار کو اثر نو مقرر کرنا ہوگا۔ آئی ایم ایف نے پھر پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی۔ نمائندہ آئی ایم ایف نے کہا ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی پالیسی پر نظر ثانی کرنا ہوگی۔ پاکستان کو 7ویں اور 8ویں جائزہ کے لیے مختلف اہداف کو مکمل کرنا ہے۔ توانائی کے اصلاحات پر 7ویں اور 8ویں جائزہ کے لیے طے شدہ اہداف پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ ملک میں ٹیکسوں کا دائرہ کار بڑھانے کی ضرورت ہے، معیشت کو سیاست سے الگ کرنا ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بھی ملک کی معیشت پر ادھر ادھر کی ریٹ قائم کر دی۔ کہا ہمارے پاس بھی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریٹ بڑھانے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ 4 سالوں میں اکنامک مینجمنٹ مکمل طور پر ناکام رہی۔ 4 سالوں میں قرضے 30 خرب سے 54 خرب تک پہنچ گئے۔ پاکستان مسلم لیگ کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو کب وطن واپس آنا چاہیے؟ نواز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف، اسحاق ڈار اور بعض دیگر افراد کے گرین سگنل کے منتظر۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں تو پھر نواز شریف فوری طور پر وطن واپس آ کر انتخابی مہم کی قیادت کریں گے۔ وطن واپسی حتمی فیصلہ نواز شریف خود کریں گے۔ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان لوگوں کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ملک میں ہچانی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ کسان اور کاروباری لوگ باہر کیوں نہیں آ رہے؟ کسانوں کو اس وقت باہر کیوں نہیں نکالا جب کھاد نہیں دے رہے تھے؟ کاروباری افراد کو اس وقت باہر کیوں نہیں نکالا جب آپ چینی باہر بھیج رہے تھے؟ سلام متاثرین کے پاس تو آپ جا نہیں سکے، خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ کوئی اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنے جا رہا، عمران خان نے ہر بات پر یو ٹرن لیا۔
इमरान खान का कोई एक बयान बता दें जिस पर वो पूरा उतरे हों। केपी में इमरान खान के एमपीएस हमारे साथ राब्ते में हैं। हम सियासी लोग हैं। मुशीर वजीर आजम फैसल करीम कुंडी का बड़ा दावा। कहा पंजाब के भी खदशात हैं। आपके वजीर आला परवेज इलाही असम्बलियां तोड़े या ना तोड़े, इमरान खान को हम सियासत सिखाएंगे। आइन की रूह से कौमी असम्बली मुकम्मल है। कानून साजी करना असम्बली का इस्तेकाक है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। वफाकी वजीर साद रफीक का ट्वीट। कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। पीटीआई वाले तनख्वाहें लेने के बावजूद असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं होते। किसी मेंबर को असम्बली कार्रवाई में जबरन शरीक करने या अक्सरियत के बावजूद कानून साजी पर कदगन का कोई कानून मौजूद नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने, अबूरी सेटअप की तरफ जा सकते हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। इंतखाबात कराने के दो ही रास्ते हैं। हुकूमत कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद आम इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। पंद्रह से 30 दिसंबर इंतहाई अहम हैं। कौम इलेक्शन की तैयारी पकड़ ले। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं मैं उम्रा करके आया हूँ। अल्लाह के घर में भी लोग पाकिस्तान की फिक्र में रो रहे हैं। ना उनको पाकिस्तान में कोई पसंद करता है ना बाहर पसंद करता है। हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। चीफ जस्टिस से केसेस खत्म करवाने वालों के नाम ECL में डालने का मुतालबा भी कर दिया। ताजिक सदर इमाम अली रहमान की पाकिस्तान आमद। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत। ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर आजम हाउस में ताजिक सदर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान ताजिकिस्तान के बहन भाइयों का दूसरा घर है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। कासा 1000 समेत दीगर मंसूबों की जल्द तकमील के ख्वाह है। खित्ते में दहशतगर्दी के लिए मुतादिद तंजीमों को भारतीय मावनत हासिल है। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद। वफाकी वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रबानी खर कहती हैं सानिया समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी भी वाज़ेह सबूत हैं। भारत से ज्यादा और किसी ने दहशतगर्दी का फायदा नहीं उठाया। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच। दोनों टीमों के खिलाड़ी मुल्तान से कराची पहुंच गए। एविएशन जराए के मुताबिक इंग्लैंड और कौमी टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने PIA से सफर किया। पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के दरमियान तीसरा टेस्ट कराची में 17 दिसंबर से शुरू होगा। और दोहा में दुनिया का सबसे बड़ा मेला फैसला कुन मरहले में दाखिल। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी ने अर्जेंटीना क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त देकर छठी बार फाइनल में रसाई हासिल कर ली। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं हसन रऊफ और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि पार्टी के तमाम जिम्मेदारान से राय ले चुका हूं। अब मजीद मुशावरत नहीं, फैसले का ऐलान होगा। असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील होंगी। साबिक वजीर आजम ने कहा कि 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा हम तबाही के किनारे पर खड़े हैं। हमारी मुईशत तबाही की तरफ जा रही है।
दुनिया के अंदर बाहर के मुल्कों में इनके बैंक अकाउंट्स हैं, वो उस किताब में लिखा हुआ है। सो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की चोरी के ऊपर। तो इनको सारों को पाक किया जा रहा है। एनआरओ 2 दे के, एनआरओ जनरल मुशर्रफ ने दिया था। 4 गुना पाकिस्तान के कर्जे बढ़े थे एनआरओ 1 के बाद, लूट मार हुई थी। हमने उठाया था वो बैंकरप्ट मुल्क जो 2018 को हमें मिला था, कि जब दिवालिया निकला हुआ था। और ये अब एनआरओ 2 जनरल बाजवा ने दिया इनको, कि ये अब आए हैं सारे पाक होके, और आहिस्ता आहिस्ता इनके सारे करप्शन केसेस खत्म हो रहे हैं। और एक एक यानी कानून बनाए हैं इन्होंने नैब अमेंडमेंट्स में कि एक एक की करप्शन माफ हो रही है। और अफसोस की बात यह है कि सलमान शहबाज वापस आता है, हार पहनाए जाते हैं उसको, और उसके बाद वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि कितना जुल्म हो गया सलमान शहबाज से। पहले तो ये बताओ सलमान शहबाज कि आपकी रमजान शुगर मिल के अंदर नौकरों के पास 16 अरब रुपए, 1600 करोड़ रुपया कैसे उनके बैंक अकाउंट्स में आ गया था? फिर अगला जवाब दो कि 4 वो मारे गए हैं, 4 आपके गवाह हार्ट अटैक से मरे हैं, और जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था डॉक्टर रिजवान, वो भी हार्ट अटैक से मरा है। एक नेटफ्लिक्स के ऊपर प्रोग्राम देख लें, उसमें बताया गया है कि ये कैसे एक नर्स ने कितने लोगों का कत्ल उनको मारा था जो हॉस्पिटल में थे। कैसे मारा था? वो सिर्फ इंसुलिन इंजेक्ट करते थे, उनके अंदर इंसुलिन इंजेक्ट करते थे और उससे हार्ट अटैक हो जाता था और पता भी नहीं चलता था। तो कभी किसी ने कोशिश तो करे कि एकदम ये सारे लोगों को हार्ट अटैक कैसे हो गए, और जब वो मर गए सारे तो ये वापस आ गए, और वापस आके कहते हैं जी बहुत बड़ा ये बेकसूर आदमी है। इसके अलावा इसहाक डार भी साफ हो गया। इसहाक डार ने $5 मिलियन का, जब नैब ने पूछा कि जनाब अपने बच्चों को $5 मिलियन भेजे, किधर से आया पैसा, कहता जी दुबई के शेख ने मैंने उसका ये काम किया था, उसने दिया। उन्होंने कहा अच्छा जनाब रसीद बता दें कि किसने पैसा दिया है। जैसे ही उन्होंने रसीद मांगी, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में बैठ के मुल्क से बाहर भाग गया। और ये शरीफ खानदान का ये जो बड़े बड़े इंकशाफ हुआ था, इनकी एवन फील्ड्स अपार्टमेंट, ये जो मेफेयर के अंदर इनके 4 सबसे लंदन के महंगे इलाके में जिधर ये रहते हैं, तो आज तक एक नहीं चीज बता सके कि पैसा सोर्स ऑफ इनकम किधर से आई थी। और इसी तरह मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि आज आसिफ जरदारी की बहन, वो सारे अगर सिंध के अंदर जाके पूछ लें कि वो जिधर भी कट आता है वो किधर जाता है, वो जरदारी माफिया के पास जाता है। तो वो भी माफ हो गया, जरदारी भी माफ, तो ये सब बच जाएंगे आप। और मैं ये अपनी कौम को ये आज बताना चाहता हूं कि मैं आपसे नहीं 26 साल से ये चीजें कह रहा था, 26 साल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को तहलील किए जाने का इम्कान है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि 17 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली तोड़ने का ऐलान करेंगे। पीटीआई ज़राए के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली 23 दिसंबर को तहलील किए जाने का इम्कान है। पीटीआई के सीनियर लीडरशिप 23 मार्च से पहले इंतखाबात की ख्वाह है। ताहम हतमी तारीख का ऐलान इमरान खान 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक इज्तिमा में करेंगे। बीएनपी मैंगल के नायब सदर मलिक वली काकड़ ने वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के मामला तय पाने से मुतालिक बयान की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का बयान हकाइक के बरक्स और मामले पर डेडलॉक बरकरार है। बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ बीएनपी मैंगल की अवलीन तरजीहात में शामिल है। नायब सदर बीएनपी मैंगल ने बताया कि विफाकी वजीर याद सादिक ने मुलाकात का वक्त मांगा है, पार्टी मुशावरत के बाद मिलेंगे। गैर मुल्की सरमायाकारी बिल 18वीं तरमीम के मुनाफी है। इत्तेहाद से निकलने का फैसला कोर कमेटी का अख्तियार है। वाज़ेह रहे कि विफाकी वजीर कानून व सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने दावा किया कि बीएनपी मैंगल के साथ रिकॉर्डिंग से मुतालिक मामला हल हो गए हैं। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए
आजम नजीर तारड़ का कहना था कि मंगल को मौकिफ है कि इस बिल को सिर्फ रिकॉर्डिंग तक ही महदूद करें। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई है। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई। इस हवाले से ज़राए की जानिब से मज़ीद बताया गया कि वफ़द की सदारत के साथ अहम मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ आरिफ अलवी के सामने पेश किया। आपको बताएं कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त हुई। ज़राए के मुताबिक सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर इक़्तिसादी अमूर अयाज सादिक और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुलाकात हुई। इस हवाले से ज़राए की जानिब से मज़ीद बताया गया कि वफ़द की सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ अहम मौजूदा मुलाकात में सियासी सूरत हाल साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि IMF के प्रोग्राम की वापसी तक मुल्क में डिफ़ॉल्ट का खतरा रहेगा। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि IMF ना आया तो दीगर मालियाती इदारे भी कर्ज नहीं देंगे, दोस्त मुल्कों के पैसों से आर्जी रिलीफ मिल जाएगा। उन्होंने तजवीज़ दी कि पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी टैक्स बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाए, जबकि गैस महंगी करना भी लाजमी है। मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि 22 लाख में से सिर्फ 30,000 दुकानदार टैक्स देते हैं, पाकिस्तान को अमीरों पर टैक्स लगाना होगा। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ सियासी विरसा दांव पर लगाकर मुल्क को डिफॉल्ट से बचा रहे हैं। IMF की पाकिस्तान में नुमाइंदा ईस्टर पीरिस ने कहा है कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी इदादो शुमार को असर नो मुकर्रर करना होगा। अपने एक बयान में नुमाइंदा IMF ईस्टर पीरिस ने कहा कि पाकिस्तान से नोवे जायजे के लिए मुस्बत बातचीत चल रही है। सैलाब के बाद पाकिस्तान के मुआशी आउटलुक का असर नो जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुआशी इदादो शुमार को असर नो मुकर्रर करना होगा। ईस्टर पीरिस ने कहा कि पाकिस्तान को मालियाती नस्ब ज़ब्त और खसारा को कंट्रोल करने के लिए अहदाफ का असरनो जायजा लेना होगा। डॉलर की एक्सचेंज रेट की पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। पाकिस्तान को 7वें और 8वें जायजा के लिए मुख्तलिफ अहदाफ को मुकम्मल करना है। तवानाई की इस्लाहात पर 7वें और 8वें जायजा के लिए तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद करना होगा। नुमाइंदा IMF का मजीद कहना था कि पाकिस्तान से बातचीत जारी रखना चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर ज़रूरियात का एहसास है। पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के रिलीफ के लिए पॉलिसीज पर बातचीत हुई है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और सेनेटर इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है, मईशत को सियासत से अलग करना होगा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि कोरोना वबा की वजह से बहुत से मुल्कों ने टैक्स रेट में इजाफा किया, हमारे पास भी टैक्स टू GDP रेट बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मैं FBR के ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम की मुकम्मल हिमायत करता हूँ। बाद सनती शोबों में टैक्स की रिपोर्टिंग का इशू भी है। पाकिस्तान को टैक्सों का दायरा कार बढ़ाने की जरूरत है। इसहाक डार ने कहा कि 5 साल कबल हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं। गुज़िश्ता 4 सालों में इकोनॉमिक मैनेजमेंट मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। 4 सालों में कर्जे 30 खरब से 54 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं। दुनिया के मुतादिद बड़े ममालिक का कर्ज टू GDP पाकिस्तान से कहीं ज्यादा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे। किसानों को इस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला गया जब खाद नहीं दे रहे थे। आप चीनी बाहर भेज रहे थे। सैलाब मुतासरीन के पास तो अब जा नहीं सकते। खुदारा होश के नाखून ले। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि PTI चेयरमैन इमरान खान लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में हिजानी कैफियत पैदा की जा रही है। कहा जा रहा है कि किसान और कारोबारी लोग बाहर क्यों नहीं आ रहे।
किसानों को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब खाद नहीं दे रहे थे। शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी अफराद को उस वक्त बाहर क्यों नहीं निकाला जब आप चीनी बाहर बेच रहे थे। सलाह मुतासिरीन के पास तो आप जा नहीं सके, खुदा ना होश के नाखुन लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ को कब वतन वापस आना चाहिए, इस बारे में मुस्लिम लीग नून में मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। तहम नवाज शरीफ, वजीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और बास दीगर अफराद के ग्रीन सिग्नल के मुंतज़िर हैं। पार्टी के आला ज़राए कहते हैं कि अगर असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं तो फिर नवाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस आ जाएंगे और इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी के बारे में पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ और न ही किसी पार्टी के आला सतह पर इस पर गौर खौस के लिए कोई मशावरती मीटिंग हुई। इसमें एक पहलू यह भी है कि वतन वापस आने का तमाम तर हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। आम राय यह है कि वो जनवरी 2023 में वापस आएंगे, उनके साथ मरियम नवाज भी होंगी। ताहम पार्टी में कुछ ऐसे नजरियात के हामी अरकान भी मौजूद हैं जिनका कहना है कि वापसी की टाइमिंग बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। मुशीर वजीर आजम फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे अदलिया, अपनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। अदारा अगर अपने दायराकार में रहकर काम करे तो मुल्क भी तरक्की करेगा। गुजरात चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मियां नवाज शरीफ की तीमारदारी के लिए लंदन गया था। सियासी रहनुमा कहीं बैठते हैं तो सियासत पर जरूर बात होती है, अस्करी हुकाम या किसी और के लिए कोई पैगाम नहीं लाया। मुशीर वजीर आजम ने कहा कि कोई असम्बलियां तहलील नहीं करने जा रहा। इमरान खान ने हर बात पर यू टर्न लिया। इमरान खान का कोई एक बयान बता दें जिस पर वो पूरा उतरे हों। पंजाब के अभी भी खदशात हैं आपके वजीर आला। परवेज इलाही असम्बलियां तोड़ें या ना तोड़ें। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि केपी में इमरान खान के MPAs हमारे साथ राब्ते में हैं। हम सियासी लोग हैं, कश्मीर से सिंध तक हर एक के साथ राब्ते में होते हैं। गुजरात चैम्बर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि जरदारी साहब ने हमेशा कहा हम डायलॉग की सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी ने कभी किसी को नहीं कहा हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते। अदम एतमाद कामयाब हुई तो वही इत्तेहादी जमातें जो PTI के साथ थी वो हमारे साथ हैं। मुशीर वजीर आजम का कहना था कि इमरान खान को हम सियासत सिखाएंगे। मुल्क की मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सियासी लीडरशिप का इस वक्त पता लगता है जब मुल्क को बहरान से निकाले। फैसल करीम कुंडी का कहना था कि पंजाब में इन हाउस तब्दीली के लिए एक मेंबर भी ज्यादा हुआ तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे, अदम एतमाद ले आएंगे। विफाकी वजीर रेलवे व हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि आइन की रूह से कौमी असम्बली मुकम्मल है। कानून साजी करना असम्बली का इस्तेकाक है जिसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। अपने एक ट्विटर पैगाम में ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खाली होने वाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात हो चुके हैं। PTI वाले तनख्वाहें लेने के बावजूद असम्बली की कार्रवाई में शरीक नहीं होते। उन्होंने मजीद कहा कि किसी मेंबर को असम्बली कार्रवाई में जबरन शरीक करने या अक्सरियत के बावजूद कानून साजी पर कदगन का कोई कानून मौजूद नहीं। कराची में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल मुआशी सूरत हाल है, सब मिलकर साथ कर दें। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय मिलकर इस्तेकाम लाना है। वजीर आला सिंध का कहना है कि जो इदारे काम करते हैं इन पर तनकीद की जाती है। तालीम में बेकायदगियों का जवाब वजीर तालीम दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक सैलाब मुतासरीन को रिलीफ नहीं मिला। सैलाब मुतासरीन के सर पर छत नहीं, वो टेंट में रह रहे हैं। हम सब साथ मिलकर मुल्क को मुश्किल वक्त से निकालें। मुराद अली शाह का यह भी कहना है कि हम तामीर की बात कर रहे हैं, कुछ लोग तोड़ ताड़ की बात कर रहे हैं। आपको एक बार फिर अपडेट करें कि कराची में तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि मुश्किल माशी सूरत हाल है, सब मिलकर साथ दें। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी के बजाय मिलकर इस्तेकाम लाना है। वजीर आला सिंध का कहना है कि जो इदारे काम करते हैं उन पर तनकीद की जाती है। तालीम में बेकायदगियों का जवाब वजीर तालीम दे चुके हैं। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत इलेक्शन नहीं कराने अबूरी सेटअप की तरफ जा सकते हैं। मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत इलेक्शन कराने को तैयार नहीं। इंतखाबात कराने के दो ही रास्ते हैं, आर्मी चीफ वजीर आजम को फोन करे या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे से हट जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। हुकूमत कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद अहम इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। हुकूमत अबूरी सेटअप की तरफ तो जा सकती है, लेकिन आप इंतखाबात की तरफ नहीं। अबूरी सेटअप के लिए कोशा है। आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत ने इलेक्शन नहीं कराने अबूरी सेटअप की तरफ जा सकते हैं। मुसलसल शिकस्त के बाद हुकूमत इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं। इंतखाबात कराने के दो ही रास्ते हैं, आर्मी चीफ वजीर आजम को फोन करें या एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से पीछे हट जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं। हुकूमत कश्मीर इलेक्शन में शिकस्त के बाद आम इंतखाबात के लिए संजीदा नजर नहीं आ रही। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुतालिक कहा कि 15 से 30 दिसंबर तक इंतहाई अहम है, कौम इलेक्शन की तैयारी पकड़ ले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि मैं उम्रा करके आया हूँ, अल्लाह के घर में भी लोग पाकिस्तान की फिक्र में रो रहे हैं। ना उनको पाकिस्तान में कोई पसंद करता है ना बाहर, हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा कि जितने लोगों ने अपने केसेस खत्म करवाए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता उनके नाम ECL में डाले जाएं। उनका मजीद कहना था कि नैबज़दा लोगों ने मुल्क से भागने के लिए तरमीम की हैं। दुनिया में इल्म से बड़ी कोई ताकत नहीं, अमली ताकत ही इंसान को आगे लेकर जाती है। अक्ल बादाम खाने से नहीं आती, इल्म से आ रहे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है। शहर में यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस की तामीर में किरदार अदा किया। मुझे खुशी हुई जब अखबार में पढ़ा कि एक रिक्शा ड्राइवर की बेटी ने CSS में टॉप किया है। आपको एक बार फिर बताएं कि साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने मुल्की सियासी सूरत हाल से मुतालिक कहा कि 15 से 30 दिसंबर इंतहाई अहम है, कौम इलेक्शन की तैयारी पकड़ ले। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब में कहा कि मैं उम्रा करके आया हूँ, अल्लाह के घर में भी लोग पाकिस्तान की फिक्र में रो रहे हैं। ना इनको पाकिस्तान में कोई पसंद करता है ना बाहर, हम टेक्निकली डिफॉल्ट हो चुके हैं। शेख रशीद ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब से कहूंगा जितना लोगों ने अपने केसेस खत्म करवाए हैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता इनके नाम ECL में रखे जाएं। ताजिक सदर इमाम अली रहमान की पाकिस्तान आमद के मौका पर पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। ताजिक सदर इमाम अली रहमान 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे तो एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर तजारत नवीद कमर ने ताजिकिस्तान के सदर का इस्तकबाल किया, जिसके बाद ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान को वजीर आजम हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर आजम हाउस में ताजिक सदर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ताजिक सदर का खैर मकदम किया। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के मामलात और इलाकाई अमूर पर तफसीली बातचीत हुई। बाद पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान भी तकरीब में शरीक थे। तकरीब के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ और ताजिक सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था कि ताजिकिस्तान के सदर को पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान ताजिकिस्तान के बहन भाइयों का दूसरा घर है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान बरादराना ताल्लुकात हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि कासा 1000 मंसूबे की जल्द तकमील के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान वस्त एशियाई मुल्कों के साथ रवाबित का फरोग चाहता है। ताजिकिस्तान वस्त एशिया का अहम मुल्क है। हम मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फरोग देने के लिए कोशा हैं। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रवानी खर ने कहा कि पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में होने वाली दहशतगर्दी में राम मुलविस है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रवानी खर ने कहा कि सानह समझौता एक्सप्रेस और कुलभूषण की गिरफ्तारी भी इसका वाज़ेह सबूत हैं। पाकिस्तान तमाम सबूतों के साथ दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी से आगाह कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से भी डोजियर शेयर किया गया है। वजीर मुमलिकत बराए खारजा हिना रवानी खर ने कहा कि भारत खित्ते में दहशतगर्दी के मुतादिद तंजीमों की मावनत व मदद करता रहा।
بھارت مقبوضہ کشمیر میں مسلسل انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ عالمی برادری احتساب کرے۔ ہنا ربانی خان نے کہا کہ بھارت سے زیادہ اور کسی نے دہشت گردی کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ بھارت نے عالمی سطح پر انسداد دہشت گردی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ Now, coming back to the Lahore incident, it is a clear evidence of a terrorist attack which was planned, which was supported by India, which was to target innocent civilians in Pakistan, Lahore, Johor Town. It reflects India's persistent hostility towards my country and the use of terrorist proxies to achieve nefarious objectives. And we believe objectives which are actually going to harm them also. Because when you try and burn a neighbor's house, the fire will come and burn you too. Our professional law enforcement agencies and judicial authorities have brought the perpetrators of this attack to justice, who have received punishment, but these are only the front line, as we all know. The masterminds and the facilitators remain at large and under Indian state patronage and protection. I can assure you that the government of Pakistan will pursue this relentlessly at every level. Now, India has already earned the infamy for its terrorist designs and actions. Its actions in the IIOJK, the infamous massacre in Indian Gujarat, which made some countries close its door on many well-known Indian leaders, and which still ensures that many other Indian leaders still continue to glorify this incident. They want اب آپ کو بتائیں کہ مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کے سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مبینہ بیٹی کو کاغذات نامزدگی میں چھپانے پر عمران خان کے خلاف نااہلی کے سماعت کے لیے مقرر کیا ہے۔ ہائی کورٹ رجسٹرار آفس نے 20 دسمبر کو کیس مقرر کرنے کی کوس لسٹ جاری کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس سے متعلق عمران خان کیس سے متعلق الیکشن کمیشن اور وفاق کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق ایک شہری کی درخواست پر سماعت کر رہے ہیں۔ عدالت نے فریقین کو پری ایڈمیشن نوٹس کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا ہے کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت غلط معلومات فراہم کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تفصیل میں 2 کا ذکر کیا، 1 کی معلومات چھپائیں۔ عدالت نے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر رکھا تھا، تاہم گزشتہ سماعت کے بعد عدالت نے درخواست میں بنائے گئے تینوں فریقین وفاق، الیکشن کمیشن اور عمران خان کو پری ایڈمیشن نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر دلائل طلب کیا تھا۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مخصوص نشستوں پر امیدواروں کے انتخاب کے لیے آج پولنگ ہو رہی ہے۔ صبح 8 بجے سے شروع ہونے والی پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہی۔ بلوچستان کے 32 اضلاع میں یونین کونسلوں، میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن کی خواتین، کسانوں، مزدوروں اور غیر مسلموں کی مجموعی طور پر 4788 مخصوص نشستوں میں سے 2310 نشستوں پر آج انتخاب ہوا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری امریکہ کے ایک ہفتے کے سرکاری دورے پر نیو یارک پہنچ گئے۔ دفتر خارجہ حکام کے مطابق بلاول بھٹو 15 دسمبر کو G77 چین کی وزاراتی کانفرنس میں شرکت کریں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملاقات ہوگی۔ وزیر خارجہ کے دورے میں نیو یارک اور واشنگٹن میں کثیر الجہتی اور 2 طرفہ مصروفیات شامل ہیں۔ بلاول بھٹو 15 دسمبر کو نیو یارک میں G77 اور چین کی وزاراتی کانفرنس کی میزبانی اور صدارت کریں گے۔ کانفرنس کے ایجنڈے میں کرونا وائرس اور آب و ہوا کی وجہ سے پیدا ہونے والی آفات پر بحث شامل ہے۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کی بریت حتمی فیصلہ قرار دیتے ہوئے نیب نے دونوں کی بریت کو درست تسلیم کر لیا۔ نیب راولپنڈی نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کا تحریری آرڈر بھی جاری کر دیا۔ ڈی جی نیب راولپنڈی فرمان اللہ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی بریت کے خلاف اپیلیں نہ کرنے کی منظوری دے دی۔
इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फरियाल तालपुर नाअहली केस का महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन ने फैसले में कहा कि जवाबदेह फरियाल तालपुर ने अपने एहसास जाहिर किए, नाअहली के लिए मवाद और ठोस सबूत देना होता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि दरख्वास्त गुजार नाअहली का केस बनाने में नाकाम रहे। फरियाल तालपुर की नाअहली के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असम्बली अरसलान ताज घुमन और राबिया असफर ने दरख्वास्त दायर की थी। जनूबी छावनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस नकब जनी गैंग गिरफ्तार। लाहौर जनूबी छावनी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने एक कार्रवाई में खातून समेत 3 नकब जन गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुलज़िमान में से अनम बीबी, मुदस्सिर और हमीद शामिल हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी छावनी मोहम्मद अकमल के मुताबिक मुलज़िमान से लाख रुपए नकदी, मोबाइल फोन्स, तराई जेवरात और नकब जनी के आलात बरामद हुए, जबकि मुलज़िमान ने दौरान तफ्तीश नकब जनी की दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट अमजद फारूक बटर का कहना है कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिन रात कोशां हैं। DIG इन्वेस्टिगेशन ने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जनूबी छावनी और टीम को शाबाश दी। वापस आते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नौजवानों को बाख्तियार बनाने के हवाले से सेमिनार का इनेकाद। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार की मेहमान खसूसी जस्टिस नासिरा इकबाल का कहना था कि हमें मुआशरे में मर्दों के शाना बशाना खड़ा होना है। पाकिस्तान में औरतों को पूरी तरह आज़ादी हासिल है। इस बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में अपने नौजवानों की कुल क़यादत को बाइख्तियार बनाने के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार का मकसद नौजवानों की क़यादत को इस शऊर से आगाही दिलाना थी कि औरतों को मर्दों के शाना बिशाना खड़ा होकर मिलकर हर काम में उनका साथ देना। मुआशरा खाली औरत से नहीं चलता। मर्द औरत गाड़ी के 2 पहिए होते हैं जिसके बगैर गाड़ी नहीं चलती। जेंडर बेस के मौजू को उठाने का मकसद हर इंसान के अंदर शऊर को उजागर करना, उनकी हिम्मत की हौसला अफजाई करना, उन्हें बाइख्तियार बनाना है। मज़ीद कोहिनूर टीवी से बात करते हुए चीफ गेस्ट नासिरा जावेद इकबाल का कहना था, देखिए मसावी हकूक है और कुरान में तो ये है कि औरतें मर्दों का लिबास है और मर्द औरतों का लिबास है। अपने अपने उनके शोबों में उनकी बल्कि अफजलियत है और ये कहते हैं कि जब मर्दों को थोड़ी सी अफजलियत इसलिए है कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और कमाते हैं और उनको खिलाते हैं। तो अगर वो ये ना करे और औरतें करें तो फिर औरतों को अफजलियत है। तो मैं समझती हूँ कि हर बंदे को इस बात की एहसास होना चाहिए और जेंडर स्टडीज़ का तो मकसद ही ये है कि मर्द, औरतें, ट्रांसजेंडर्स और शहरी जो भी हैं इनकी सबकी मसावी एक होनी चाहिए हैसियत और हर एक को इस बात का एहसास। मजीद कुछ स्टूडेंट का कहना था, हमें मुआशरे की भाग दौड़ को संभालने के लिए, खुद को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने साथ एक मर्द का सहारा होना लाजिम है। वो किसी भी रूप में होगा, बाप, भाई, बेटा, हमें पेशानी से डट कर मुकाबला करना होगा, तभी मुआशरे में अपना नाम कमा सकते हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट्स देखें, विमेन एक्शन फोरम की रिपोर्ट्स देखें तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स हैं फीमेल की रैंकिंग के हवाले से वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं है। लेबर फोर्स में बहुत गैप्स हैं, पॉलिटिक्स में बहुत गैप्स हैं, हेल्थ में बहुत गैप्स हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देख लें आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट मेल और फीमेल का देख लें, आप हेल्थ में ड्रॉप आउट रेट देख लें। तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने नेशनल और इंटरनेशनल कमिटमेंट्स आपने फुलफिल करने हैं, अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको जेंडर स्टडीज को एज अ डिसिप्लिन फ्रो करना पड़ेगा। औरत को मर्द के साथ सहारा बनकर चलना चाहिए, क्योंकि बैलेंस अगर दोनों तरफ से होगा तो फिर जेंडर बैलेंस चलेगा। वो उसकी सुने और वो उसकी, मर्द औरत की सुने और औरत को इसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। और जब स्टैंड लेगी तो मर्द को अपना इस तरह होना चाहिए, हमें मर्द की तरबियत इस तरह करनी चाहिए दैट दे शुड स्टैंड फॉर वुमेन, कि वो उसको एम्पावर करे। दैट्स आवर बेसिक इनिशिएटिव कि एम्पावर्ड वुमेन।
पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर तबादले। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मुल्तान इखलाक अहमद खान को एडिशनल सेक्रेटरी महकमा हाउसिंग अर्बन जनूबी पंजाब तैनात कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहिबाल राव नदीम अख्तर को तब्दील कर दिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू बखर मोहम्मद नसरुल्लाह खान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू साहिबाल तैनात। डिप्टी कमिश्नर महकमा हाउसिंग अर्बन जनूबी पंजाब गुलाम मुस्तफा को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बखर तैनात कर दिया गया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हम जिन्स परस्तों की शादी के बिल पर दस्तखत कर दिए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक व्हाइट हाउस के साउथ हॉल में हम जिन्स परस्तों की शादी के बिल पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर जो बाइडन ने बिल पर दस्तखत किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर बाइडन ने अमरीकी हम जिन्स शादी के कानून को अहम कदम करार दिया। खबर रसा एजेंसी का कहना है कि रिस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट शादी के हक की जमानत नहीं देता। अगर एक्ट के तहत रियासतों को अपने खतूत पर हम जिन्स शादियों को तस्लीम करना है। इंग्लैंड और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें टेस्ट खेलने के लिए आज मुल्तान से कराची गईं। एविएशन जराये के मुताबिक इंग्लैंड और कौमी टीमों के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स ने PIA से सफर किया। परवाज PK 6331 ने दोपहर 1:05 पर कराची एयरपोर्ट के जिनाह टर्मिनल पर लैंड किया। एयरपोर्ट से मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों को खसूसी हिफाजती इंतजाम के तहत होटल रवाना किया गया। पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान तीसरा टेस्ट कराची में 17 दिसंबर से शुरू होगा, जो 21 दिसंबर तक जारी रहेगा। अब बात करेंगे कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की, जहां फीफा वर्ल्ड कप 2022 के पहले सेमीफाइनल में लियोनेल मेसी की अर्जेंटीना क्रोएशिया को 3-0 से शिकस्त देकर छठी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। लोसेल स्टेडियम में खेले गए मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी ने 34वें और जूलियन अल्वारेज ने 39वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को पोजीशन मुस्तहकम की। लियोनेल मेसी का ये वर्ल्ड कप फुटबॉल में मजमूई तौर पर 11वां गोल था। वो अपने मुल्क की जानिब से वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए। उन्होंने साबिक खिलाड़ी बेटसोटा का रिकॉर्ड तोड़ डाला। मैच के दूसरे हाफ में भी कप्तान लियोनेल मेसी की शानदार पास की बदौलत जूलियन अल्वारेज ने 69वें मिनट में एक और गोल करके अर्जेंटाइन की कामयाबी को यकीनी बनाया। मेसी वर्ल्ड कप मुकाबलों में अर्जेंटाइन के लिए सबसे ज्यादा 11 गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटाइन के स्टार फुटबॉलर मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। सेमीफाइनल में क्रोएशिया के खिलाफ गोल करके अर्जेंटाइन की जानिब से टॉप स्कोरर बन गए। मेसी के फीफा वर्ल्ड कप में गोल्स की तादाद 11 हो गई। अब तक खेले गए तमाम वर्ल्ड कप्स में 8 प्लेयर्स 11 या इससे ज्यादा गोल कर चुके हैं। कतर में जारी फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन ने क्रोएशिया को शिकस्त देकर छठी बार मेगा इवेंट के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसाई हासिल करने वाले मराकश टीम के स्टार फुटबॉलर हकीम ज़ियच ने इवेंट के दौरान मिलने वाली $3,25,000 गरीब लोगों में बांट दिए। मराकश से ताल्लुक रखने वाले एक लिखारी खालिद बैदून ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए सिलसिला वार ट्वीट्स में लिखा कि हकीम ज़ियच 2015 से मराकश के लिए फुटबॉल खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ₹1 भी नहीं लिया। खालिद बैदून का कहना है कि हकीम ज़ियच अपनी तनख्वाहों को आबाई इलाके मराकश के गरीब लोगों और अपनी टीम के अमले में तकसीम कर देते हैं। मराकश पुर्तगाल को हराकर फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली अरब और अफ्रीकी टीम है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।